زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ حسن بیان کے تیسرے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا تیسرا پروگرام بھی صدیق گروپ، عثمان گروپ اور نور گروپ کے مابین ہوگا، اور اس پروگرام کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ان تین گروپس میں سے فائنل کے لیے کون سی ٹیم ہے جو کوالیفائی کر گئی ہے۔ پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف۔ حافظ جاوید الرحمان۔ فاتح احمد۔ جی عثمان گروپ۔ انیل احمد۔ آفاق احمد۔ جی نور گروپ۔ شہزاد کاشف۔ نعیم اللہ مانگٹ۔ جی تعارف مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ہم پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ پروگرامز کی طرح ہی ہم آپ کے سامنے دو سوالات رکھیں گے، اور ہر ایک ٹیم کے سامنے ایک لفظ جو ہے وہ کسی بھی مشہور نظم میں سے جو در سمین، کلام محمود، کلام طاہر اور در عدن میں سے ہوگی، اس کا آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ نے اس ایک لفظ سے یا دو الفاظ ہوں گے ان میں سے آپ نے شعر کو مکمل کرنا ہے، ترنم کے ساتھ پیش کریں گے۔ وہ بتائیں گے کہ وہ کس کتاب میں سے ہے، اور پھر آپ بتائیں گے کہ یہ کلام کس کا ہے۔ جی صدیق گروپ تیار ہیں آپ؟ حافظ صاحب اور فاتح احمد۔ پہلا راؤنڈ، پہلا سوال، تین الفاظ ہیں آپ کی آسانی کے لیے، دو بھی نہیں بلکہ تین الفاظ آگے ہیں۔ کب آئیں گے؟ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، وقت آپ کے پاس محدود ہے۔ کب آئیں گے؟ جی شعر نہیں آتا آپ کو؟ جی کوئی کتاب کا نام آتا ہے؟ بعض کا ہوتا ہے کہ ذہن میں شعر ہوتا ہے لیکن یادداشت کام نہیں کر رہی ہوتی۔ درسمین۔ جی مجھے افسوس ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اب جواب بتانے سے پہلے ناظرین دوسری ٹیموں سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، عثمان گروپ یا نور گروپ میں سے دونوں میں سے کسی کو آتا ہے؟ حاضرین کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین جی، حاضرین میں سے کوئی؟ کلام طاہر میں سے نہیں، کلام طاہر میں سے بھی نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ کب آئیں گے جو دور ہیں وہ پاس ہمارے، کب آئیں گے دل جن کو ڈھونڈتا ہے وہ پیارے، کب آئیں گے، یہ در عدن میں سے ہے، اور حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پاکیزہ منظوم کلام ہے۔ جی پہلا سوال، اور اس میں آپ کے لیے کوئی نمبر نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ صاحب، دو الفاظ ہیں، اہل وفا۔ اہل وفا، اس میں آپ کا ترنم بھی اور آپ کی یادداشت بھی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مشورے کے بعد کون سی چیز ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا امتحان ہے اس پروگرام میں آپ کا۔ جی حافظ صاحب، وقت آپ کے پاس محدود ہے۔ دوسری ٹیموں کی طرف چلتے ہیں۔ جی جو گروپ سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو پتہ ہے؟ جی جی عہد شکنی نہ کرو، اہل وفا ہو جاؤ۔ جی عہد شکنی نہ کرو، اہل وفا ہو جاؤ۔ نہیں آگے نہیں آتا۔
जी आधा मिसरा। हाँ जी ये कलाम महमूद में से है जी और हज़रत खलीफत मसीह सानी का कलाम है। हज़रत मुस्लिम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम है। वक्त गुजर चुका था, लेकिन फिर भी मॉडरेटर साहब जो भी आपको नंबर्स देंगे वो उनकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। लेकिन अब भी आपने एक मिसरा जो है वो पहला बताया है और दूसरा मिसरा अब भी नहीं बता सके, लेकिन अगले जो 2 जुज़्व हैं उनके जवाब आपने दुरुस्त दिए हैं। दूसरी टीमों की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन यादाश्त जो है वो बाज़ का काम नहीं करती, इसलिए जहन में नहीं आता शेर। हाँ जी, अहद शिकनी ना करो, अहले वफा हो जाओ, अहले शैतान ना बनो, अहले शैतान ना बनो, अहले खुदा हो जाओ। अहले खुदा हो जाओ। कौन इसका तरन्नुम पेश करेगा? जी नईमुल्लाह जी। अहद शिकनी ना करो, अहले वफा हो जाओ, अहले शैताना बनो, अहले खुदा हो जाओ। जी आगे चलते हैं उस्मान ग्रुप की तरफ। जी तैयार हैं जी अनील और आफाक? आपके लिए 2 अल्फाज हैं। फोनोग्राफ एक ही लफ्ज़ बन जाता है, लेकिन उनको लहदा करें तो 2 बनते हैं। वैसे ये एक ही लफ्ज़ है, फोनोग्राफ। पहला मिसरा ही आता है। इन चारों किताबों में से सिर्फ एक नज़्म में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आवाज़ आ रही है फोनोग्राम से, आवाज़ आ रही है फोनोग्राम से। एक लफ्ज़ छोड़ दिया आपने। किस किताब में है ये? कलाम महमूद में। मुझे अफसोस है कि दुरुस्त नहीं है जी। कोई और दुरे टीम? समीन। हाजरीन की तरफ चलते हैं। नाजरीन जी, दुरे समीन से। हाजरीन में से शेर मुकम्मल करें, हाथ खड़ा करें। कौन बताएगा जी? नवीद बताएं। आवाज़ आ रही है फोनोग्राफ से, ढूंढो खुदा को। आवाज़ आ रही है ये फोनोग्राफ ये से, फोनोग्राफ से, ढूंढो खुदा को दिल से, ना लाफो गदा से। नलाफो गदाफ से। ठीक है, किसी को तरन्नुम आता है जी इसका? जी आवाज़ आ रही है ये फोनोग्राफ से, ढूंढो खुदा को दिल से, ना लाफो गदाफ से। जी ठीक है, बहुत खूब जी। जी वापस आते हैं जी उस्मान ग्रुप की तरफ। और 3 इस सवाल के जुज़ थे, इनमें से कोई नंबर नहीं दिया गया जी। दूसरा सवाल है आपसे। 2 अल्फाज हैं, लौ लगानी। लौ लगानी जी, आप भी मशवरा कर लें और जो दूसरे बैठे हैं वो भी अपने साथियों से मशवरा कर लें। वक्त आपके पास महदूद है जी। जी वक्त गुजर चुका है। हाजरीन की तरफ चलते हैं। नाजरीन जी, खुबैब जी बताएं, शेर मुकम्मल करें। खुदा से चाहिए है लो लगानी के सब फानी है पर वो गैर फानी। बिल्कुल ठीक है। तरन्नुम कौन पेश करेगा? हिबा जी। खुदा से चाहिए है लो लगानी के सब फानी है पर वो गैर फानी। जी के सब फानी हैं पर वो गैर फानी। जी दुरुस्त है जी। नाज़रीन वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ। उस्मान ग्रुप से दोनों सवालात हमने पूछ लिए पहले राउंड के। अब नूर ग्रुप की तरफ चलते हैं जी। किताब बताते हैं। किताब बताते हैं जी। वक्त गुजर नहीं गया आपका? चलें बताएं जी। कलाम महमूद। कलाम महमूद। और किसका कलाम है? ये खलीफत मसीह हज़रत खलीफत मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने बता दिया, लेकिन फैसला हम मॉडरेटर साहब पे छोड़ते हैं। अगर वो आपको नंबर देना चाहें तो दें, अगर नहीं चाहें तो वो बेशक ना आपको नंबर दें। ठीक है जी। जी नाज़रीन, अब हम नूर ग्रुप की तरफ चलते हैं। पहला राउंड है, 2 सवालात आपसे पूछे जाएंगे। पहला सवाल, उसमें 2 अल्फाज हैं।
प्यारे खुदा। खुदाया ए मेरे प्यारे खुदाया ये कैसे हैं तेरे मुझ पर अताया। जी बिल्कुल दुरुस्त है जी। खुदाया ए मेरे प्यारे खुदाया ये कैसे हैं तेरे मुझ पर अताया। ये दुरुस्त मीन से दुरुस्त मीन से है और हज़रत मसीह मौद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम। और 5 नंबर का तरन्नुम अभी बाकी है। खुदाया ए मेरे प्यारे खुदाया ये कैसे हैं तेरे मुझ पर अताया। जज़ाकुमुल्लाह हसनन जज़ा। जी दुरुस्त है जी बिल्कुल आपका जवाब। अब आगे बहुत ही आसान सवाल आपके लिए आया है। ला इलाहा इल्लल्लाह है दस्त की बिला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह है दर्द दिल की दवा ला इलाहा जी इल्लल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त है जी। किस किताब में से? ये कलाम महमूद कलाम में महमूद से और हज़रत खलीफतुल और मसीह सानी का हज़रत कलाम। खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम। जी तरन्नुम पेश करें। है दस्ते क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह है दर्द दिल की दवा ला इलाहा इल्लल्लाह। जी बहुत खूब जी। नाज़रीन इसके साथ ही पहला राउंड जो है वो इख्तिताम को पहुंचता है। अब हम चलते हैं मोहम्मद ज़करिया की तरफ और पहले राउंड के इख्तिताम पर देखते हैं नतीजा क्या है। पहले मरहले के इख्तिताम पर सदीक ग्रुप ने हासिल किए हैं 10 नंबर, उस्मान ग्रुप कोई नंबर हासिल नहीं कर सका और नूर ग्रुप ने हासिल किए हैं 26 नंबर। जज़ाकुमुल्लाहु हसनल जज़ा। जी नाज़रीन अब हम दूसरे राउंड की तरफ आते हैं। दूसरे राउंड में तीनों टीमों को 2-2 पर्चियां हमने दे दी हैं और उन पर्चियों के ऊपर भी इन चारों किताबों में से जो मारूफ नज़में हैं उनके पहले शेर का पहला मिसरा या आधा मिसरा लिखा होगा जिससे उन्होंने शेर मुकम्मल करना है और किताब का नाम बताना है और इस तरह बताएंगे कि ये शेर किसका है। और इसके भी 15 नंबर होंगे और हर टीम के लिए चूँकि 2-2 सवालात हैं इसलिए 30-30 नंबर से इनको नंबर दिए जाएंगे। अब हम सबसे पहले सिद्दीक ग्रुप की तरफ चलते हैं। हाफिज़ जावेदुर रहमान और फ़ातिह अहमद। जी हाफ़ साहब पर्ची खोलें। जी क्या लिखा हुआ है जी? तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे जी हम, ठीक है। तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम, मगर न छोड़ेंगे तुझको हरगिज न तेरे दर पर से जाएंगे जी हम। बिल्कुल दुरुस्त है। किसका कलाम है जी? यह हज़रत खलीफतुल मसीह सानी सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम और कलाम कलाम महमूद में से। महमूद में से है। जी तरन्नुम पेश करें। तेरी मोहब्बत में मेरे प्यारे हर एक मुसीबत उठाएंगे हम, मगर न छोड़ेंगे तुझको हरगिज न तेरे दर पर से जाएंगे हम। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। जी दूसरी पर्ची खोलें जी। जी फातेह क्या निकला पर्ची में से? जी अब छोड़ दो जहाद का है दोस्तों ख्याल। जी ठीक है। अब छोड़ दो जहाद का है दोस्तों ख्याल। दी के लिए हराम है अब जंग और दी किताल। के लिए हराम है अब जंग और किताल। जी बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी का कलाम है। और किस किताब में है? कलाम महमूद में। जी नहीं, आपका जवाब ये दुरुस्त नहीं है। शेर आपने दुरुस्त बयान किया है और इसी वजह से ये रखा गया था कि याददाश्तें जो हैं वो काम करती हैं कि नहीं। ये भी आपका इम्तिहान था कि किस किताब में से है। ये किस किताब में है जी? जी आफाक।
ये दुरस्मीन में से है। दुरस्मीन में से है और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का कलाम है। जी, तरन्नुम के साथ पेश कर सकते हैं हाफ साहब या फातिह अहमद। अब छोड़ दो जहाद का ए दोस्तो ख्याल, दी के लिए हराम है अब जंग और किताब। बिल्कुल दूसरा जी, जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। नाज़रीन, अब हम आगे चलते हैं उस्मान ग्रुप की तरफ। जी, पर्ची खोलें। जी, कौन सा मिसरा है? कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को, जी, बहुत आसान। कभी ज़ाये नहीं करता वो अपने नेक बंदों को। अपने नेक बंदों को, दुरुस्त है जी। कौन सी किताब में से? दुरस्मीन, दुरस्मीन और खलीफा मसीह मौद अलैहिस्सलाम। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का कलाम है। जी, तरन्नुम अभी बकाया है। कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को, कभी ज़ाये नहीं करता वो अपने नेक बंदों को। जी, दूसरी पर्ची खोलें आफाक। कौन सा मिसरा है आपके हिस्से में? लो जाओ तुमको साया रहमत नसीब हो। जी, लो जाओ तुमको साया रहमत नसीब हो। थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जी, नहीं, किताब का नाम पर्ची के ऊपर नहीं लिखा होगा। पर्ची को आप इतने गौर से देख रहे हैं कि उसके ऊपर लिखा होगा किताब का नाम। जी, फातिह अहमद बताए, माइक दें। लो जाओ तुमको साया रहमत नसीब हो, बढ़ती हुई खुदा की इनायत अनायत नसीब। नसीब हो। बिल्कुल दुरुस्त है। ये किसका कलाम है? हज़रत सईदा नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुर्र अदन में से है। जी, हाजरीन की तरफ आते हैं। जी, तरन्नुम कौन पेश करेगा? जी, हाथ खड़ा करें, दें जी माइक। जी, लो जाओ तुमको साये रहमत नसीब हो, बढ़ती हुई खुदा की इनायत नसीब हो। जी, बहुत खूब। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं नूर ग्रुप की तरफ, जो गुज़श्ता प्रोग्राम में हमारी फातिह टीम थी। जी, पर्ची खोलें जी। ज़िंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। जी, ठीक है। किसका कलाम है ये? हज़रत मसीह मौद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का कलाम दुरस्मीन। दुर्र समीन। जी, दुरुस्त है जी। तरन्नुम कौन पेश करेगा? जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है। जी, जज़ाकुमुल्लाह। इसके अलावा भी किसी को तरन्नुम आता है इस नज़म का? इस तरन्नुम के अलावा? जी, आफाक को दे जी। जी, जिंदगी बख्श जामे अहमद है, क्या ही प्यारा ये नाम अहमद है, जिंदगी बख्श जामे अहमद है। जी, बहुत खूब। जी हाँ जी। और हाजरीन में से इन दो तरन्नुम के अलावा कोई और तरन्नुम किसी के पास? हिबा? कोई नहीं जी, चलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, नूर ग्रुप, दूसरी पर्ची खोलें और देखते हैं कि आपकी किस्मत में कौन सा मिसरा है। गम अपने दोस्तों का भी खाना पड़े हमें, गम अपने दोस्तों का भी खाना पड़े हमें,
अगयार का भी बोझ उठाना पड़े हमें। जी बिल्कुल दुरुस्त है। किसका कलाम है जी? ये हज़रत खलीफतुल मसीह सानी का कलाम महमूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम और कलाम महमूद में से बिल्कुल दुरुस्त है जी। गम अपने दोस्तों का भी खाना पड़े हमें, अगियार का भी बोझ उठाना पड़े हमें, उठाना पड़े हमें। जी बहुत खूब, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। दूसरा राउंड इसके साथ ही नाज़रीन अपने इख्तिताम को पहुंचा और 60 नंबर टोटल बनते हैं। पहले राउंड के भी 30 और दूसरे के भी 30। तो मोहम्मद ज़करिया की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट इस वक्त तक क्या है। दूसरे राउंड के इख्तिताम पर रिजल्ट कुछ यूँ है। सदीक ग्रुप ने हासिल किए हैं 15 नंबर, उस्मान ग्रुप ने 12 और नूर ग्रुप ने 26 नंबर। यूँ सर नतीजे के हिसाब से नूर ग्रुप फर्स्ट जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। नाज़रीन अब हम तीसरे और फाइनल राउंड की तरफ आते हैं और इस राउंड में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से हम बाज़ वाक़यात को लेते हैं और उनके इशारे जो हैं वो टीमों के सामने रखते हैं। उन इशारों को आपस में मिलाकर टीमों ने जवाब देना होता है कि कौन से वाक़ये की तरफ ये इशारा किया गया है या किस शख्सियत का नाम है जो इन इशारों से साबित होता है। सबसे पहले हम सिद्दीक ग्रुप की तरफ चलते हैं। जी आप सब तैयार हैं? 10 नंबर होंगे इसके। एक ही सवाल है जो आपसे पूछा जाएगा। 5 इशारे हैं जो आपके सामने रखे जाएंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मुतहरा, जब उनकी शादी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो दोनों की उम्रों में तकरीबन 15 साल का फ़र्क था। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन ज़ौजा मुतहरा के बतन से औलाद भी अता फरमाई और जब आप फौत हो गई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक इनका ज़िक्र निहायत प्यारे अल्फाज में करते रहे। ज़ौजा मुतहरा का नाम बताएं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अन्हा। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बिल्कुल दुरुस्त है जी। 10 नंबर जी। उस्मान ग्रुप, अनील अहमद और आफाक अहमद जी तैयार हैं? जी। आपको भी 5 हिंट्स दिए जाएंगे और उनमें से आपने उनको आपस में मिला के देखना है कि कौन सी बात है जो आपसे पूछी जा रही है। मक्का का दौर है, मुशरिकीन मक्का सख्त मुखालिफत पर तुले हुए हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक करीबी अजीज़ की ज़ेरे किफ़ालत हैं और आपके ये जो अजीज़ हैं कई सालों से आपकी कफ़ालत कर रहे हैं, आपकी परवरिश कर रहे हैं। इनके पास एक वफ़द भी जाता है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद से मोहब्बत और बुतों को बुरा भला कहने की शिकायत करता है। शख्सियत का नाम बताएं कि किन शख्सियत की तरफ इशारा है। अबू तालिब। हज़रत अबू तालिब, हज़रत बिल्कुल दुरुस्त है जी आपका जवाब। 10 नंबर जी। नूर ग्रुप, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हैं। 313। कुरान करीम यौमुल फुरकान के अल्फाज इस्तेमाल करता है और ये एक ऐसा वाक़या है कि इस वाक़ये से कबल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके सामने एक अहद करते हैं कि हम आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी, आपके दाएं भी, आपके बाएं भी, और दुश्मन आप तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि हमारी लाशों को रौंदता हुआ ना आए। कौन सा वाक़या है जो आपके जहन में आता है? जी शहजाद काशिफ और नईमुल्ला मांगट। गज़वा उहद।
मुझे अफसोस है कि जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। और कोई जवाब देना चाहेगा? जी हाजरीन की तरफ जी बताएं। अब्दुल सलाम। गज़वा बदर। गज़वा बदर बिल्कुल दुरुस्त है जी। गज़वा बदर की तरफ इशारा है जी। मुझे अफसोस है कि नूर ग्रुप 10 में से आपको इस सवाल का कोई नंबर नहीं मिलेगा। नाज़रीन इसके साथ ही हमारा तीसरा राउंड जो है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम चलते हैं मोहम्मद ज़करिया की तरफ और देखते हैं कि 3 राउंड्स के इख्तिताम पर जो फाइनल रिज़ल्ट हमारे सामने आया है वो क्या है। तीसरे राउंड के इख्तिताम पर नतीजा कुछ यूँ है। सदीक ग्रुप ने 70 में से हासिल किए हैं 35 नंबर, उस्मान ग्रुप ने 22 नंबर और नूर ग्रुप ने 52 नंबर। इस तरह नतीजे के हिसाब से जो आज हमारा विनर ग्रुप है वो है नूर ग्रुप। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा तीसरा प्रोग्राम जो है उसका वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन मैं रिज़ल्ट आपके सामने रख देता हूं। जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि हम हर टीम के साथ 3 मुसलसल प्रोग्राम करेंगे। ये 3 टीमें थी जिनके साथ हमने मुसलसल 3 प्रोग्राम किए और इन तीनों प्रोग्राम्स में जो फातेह टीम करार पाई है लगातार 2 प्रोग्राम्स में वो नूर ग्रुप बनता है। तो इस तरह फ़ाइनल के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से जिस ग्रुप ने क्वालिफाई किया है वो नूर ग्रुप है। अब नूर ग्रुप के शहजाद काशिफ और नईमुल्लाह मांगड़ जो हैं वो फ़ाइनल के लिए तैयारी करेंगे और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह नई 3 टीमों के साथ हम आपकी खिदमत में हुस्न बयान प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दस्ते क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह है दर्द दिल की दवा ला इलाहा इल्लल्लाह